find resources, what are they, how they work. I will say till here, I think this paragraph and this diagram I had explained. Now, till here we had studied this activity. I told you to exercise. Now, development of resources. What is development of resources? So, children, development of resources. Resources are vital. Resources are vital for human life. Resources are vital for human survival. Uh, Resources are vital for human survival. Yes. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. Vital for human survival means they are like the lifeline. Without resources, we can't perform a single task. Without adequate resources, we can't perform exact exercise of life or livelihood, as well as for maintaining the quality of life. Uh, These children, quality of life, what is meant by quality of life? Quality of life is, I will say, is why we study. We study to maintain a standard in our life. Is what the life our parents had led, we are more prosperous than from them. So education has this goal. Education has this goal to improve the life. The life led with the parents, and after the life led with the kids of the sons. So this is the means education. We get education to improve the quality standard of life. Same is for resources. When we study, we definitely increase resources. We definitely enrich our life in means of comfort, is in means of, I will say, jobs, in means of homes, in means of traveling with the good vehicles, good transport, good infrastructure. Wherever we are, we try to develop. Means an illiterate person can't, I will say, compete with you at any cost, because he has no education and he cannot give any quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. ऐसा माना जाता है कि संसाधन जो है वो नेचर की फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप मीन्स नेचर हैज नॉट took any charge or fees or payment for what it had provided to human. So all the gifts are free, and you all know well, nothing in our life we get freely. Everywhere we have to perform, then we get something. You can say gift, you can say salary, you can say, I will say, the charge of the work. But nature has given everything in free. In free. It
had not charged anything to us. Definitely. Now you will say, sir, what is nature? What is nature? So regarding nature, I will say the air you get, had it took any charge, had nature asked any charge from you? Not at all. Water, no charge. Sunlight, no charge. Nothing. Everything free. You understand what I am saying? What is the meaning of this line? Okay. Our greatest what we say in Rashtrapita Mahatma Gandhi, he said somewhere that we had, not we had, that nature has a lot for me, but nothing for our creation. So if someone try to infiltrate the greed, he will not get, means he will definitely destroy. And development grow in around that. It's enough now. As a result, Parinam Guru, human beings used them indiscriminately, and this has led to the following major problems. Because nature has not put any charge from us. So, what happened? There is no partiality with anyone. If someone will use this resource or others will not use, everyone has been, I will say, without any charge can use them in their life. Industry. No partiality to anyone whatsoever. But it created the problem. Means why it created the problem? If we are responsible, then we will not misuse the thing. But if we are a little careless, or we are the greed rather being weak, then it creates problem. This you can understand this thing by one example. If we have a thrust of a glass, why we waste another glass just sipping it and leaving the whole glass of water to be wasted? This is the thing. But this type of we have created vast problems. What are the problems? Problems are depletion of resources. Problems are depletion of resources for satisfying the need of a human being. If someone is greedy, he will misuse, or he will not properly use the resources, and this may lead to the depletion of the resources. And this is an irresponsible, I will say, irresponsible we have for our coming generations. So we should be responsible in both hands, rather being greedy, rather being careless. Another problem: accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is, have and have not, rich or poor. Accumulation means if someone has stored or someone has occupied some of the resources and said these are only mine, not of others. So what does it mean? It means someone will be left without being quenched with its need. अपनी ज़रूरत को फुलफिल किए बिना तो प्यासा लग जाएगा, भूखा रह जाएगा, अगर एक आदमी सारी चीज़ों पर जरूर. Often you understand, I will give you an example. What is this problem? Whenever the huge heavy rainfall happens, the roads are blocked, and somehow the traffic is, I will say, the traffic is interrupted, and this interrupted creates a problem. During this, some greedy people, what they do, they stores the basic needs into their godowns, and
What is results? It results in shortage of the thing, and when it results in shortage, they slowly distributes the thing, the requirement, and when they slowly bring it in the market, it increased the rates, and people definitely start using less of the thing how much they had required. So this is the thing. So accumulation is a very wrong thing. If nature has not done discrimination, then why should we human being do? Everyone has the right to live. मीन्स हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सभी जियो और जीने दो। ऐसा मत करो कि अगर ऑक्सीजन मुझे चाहिए तो आप गैस के जो है सिलेंडर कब्जा करके रख लो, जैसे लॉकडाउन में हुआ था, आपको याद आया? तो ये चीज़ इसमें बताई गई। दिस इज द। अब यहाँ पर बात ये है कि जैसे संसाधन है, वो संसाधन ही है जिनसे हम अपना जीवन यापन करते हैं, जो भी हमें प्रकृति से मिला है उनका प्रयोग करके हम करते हैं। अब जैसे हमारी एजुकेशन है, इसमें हम पेपर का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी मन लगा और अच्छे से अपने को डेवलप करते हैं, अच्छी जॉब पाते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। अगर कह दिया जाए कि नहीं एजुकेशन कुछ लोग लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे, तो दिस इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, इट्स नॉट, ऐसा नहीं चाहिए। तो इट हैज़ वेरी वास्ट, दिस वर्ड इज़ वेरी वास्ट रिगार्डिंग सोसाइटी एंड फॉर सोशल स्टडीज। तो इट्स अ रॉन्ग, it creates the two groups in the society, rich and poor. If someone who had accumulated the things, they will become rich, and those, if someone has accumulated, it means one will left thirsty, one will left hungry, and there is the rich, have and have not, rich or poor. Now the life will suffer. Another problem, indiscriminate exploitation of resources has led to a global ecological crisis. Now this problem is not only of I will say only of human being, it also spoils the nature, which has given human being everything free of cost. They humiliates even the nature also. Human being is humiliated. Humans are humiliated by their behavior. In this regard, I will say the nature itself humiliated, destroyed by their behavior, by their indiscriminate exploitation of resources. It has led to global ecological crisis. Global ecological crisis. Ecology all. पॉन्ड हैज इट्स ओन इकोलॉजी। पॉन्ड में जो जीव जंतु रहते हैं बाहर से कुछ लेने नहीं आते, जो उसके अंदर रहते हैं अपना जीवन यापन उसी के अंदर कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। ऐसे ही मानव हमारा है बायोस्फीयर, बाहर से कुछ नहीं लेने जाते, हम बायोस्फीयर में रहते हैं, हमारा सेटअप अपने में चल जाता है, हम मंगल ग्रह पर लेने के लिए कुछ नहीं जाते कि ऊँचा कुछ नहीं लेने जाते। तो दिस इज़ द आवर इकोलॉजी। पॉन्ड की अलग इकोलॉजी, इकोलॉजी समझिए ना, एक जो जैसे हम एक घर में रहते हैं और अपने घर में इधर उधर से ला करके सारी चीज़ें रख लेकर अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं, दिस इज़ अ सोसाइटी एंड कल्चरल वे टू लिव अवर लाइफ। तो दिस इज़ द बट इकोलॉजी नहीं कहेंगे इसको, बट वी कैन से दिस इज़ द पार्ट ऑफ बैलेंस। तो ऐसे करके एक व्यवस्था को मैनेज कर देता है, बाहर से कुछ लेने नहीं आ रहा, तो उसको कहते हैं इकोलॉजी। जैसे पॉन्ड का अपना कल्चर है, उसके जीव जंतु, मछली, कछुआ, जो भी जीव जंतु है सब अपना अंदर ही अंदर सर्वाइव कर लेते हैं, बाहर से कुछ लेने नहीं आता, उसको कहते हैं इकोलॉजी। तो इससे अब देखिए बायोस्फीयर जब है और कोई इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइट कर रहा है जिससे, तो इससे जो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जनरेट हो जाती है। अब ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल माने पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर इकोलॉजिकल, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। बिल्कुल डेफिनेटली। जैसे अमेरिका है विकसित देश, जापान विकसित देश है, रसिया विकसित देश है, डेवलप्ड, यूरोपियन कंट्रीज डेवलप्ड, ये सब डेवलप्ड है और इनके पास सारी टेक्नोलॉजी भी है और इस संसाधनों का हर तरीके से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब इस चीज़ को ये ज़्यादा करते हैं, तो अगर ये ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली एयर को पॉल्यूट करेंगे। भाई कोई भी मशीन चलेगी, इट विल जनरेट, आई विल से स्टीम, एंड स्टीम विल पॉल्यूट द आई विल से नेचर, एंड एज मच is the air polluted, it will disturb the ozone layer, the maximum
I will say, pollution created by the factories. It will create carbon dioxide, and definitely it will extract the size of the ozone hole, black hole, ozone layer depletion. I told you about black hole. It also increased the black hole, ozone layer depletion. As much as the pollution, the ozone layer will deplete in the same ratio. What is the task of ozone layer? These three words, ozone layer depletion. What is it? The ozone layer, what is it? We get two types of rays from the sun. One is infrared rays, another is ultraviolet rays. तो इंफ्रारेड हमारे लिए अच्छी है और अल्ट्रावायलेट हमारे लिए नुकसानदायक है। इसमें से दो किरणें आती हैं, एक हमारे लिए फ़ायदेमंद और एक नुकसानदायक। तो ये जो हमारी ओजोन लेयर है, ये जो है अल्ट्रावायलेट रेड्स को, जो हमारे लिए उपयोगी रे उनको हमारे पास आने देती है, और जो हानिकारक है, अब जैसे सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट रेड्स हमारे पास आ जाए, इन दोनों में एक रेड्स जो हमारे लिए उपयोगी हैं वो अगर हमारे लिए आज पास आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। If the rays that are harmful to us, means ultraviolet rays, they will harm our skin. So by this way, there are many allergies, and I will say allergies, and our stitches will open. People feel, I will say, itching problems, rashes on the skin, even the stitches opens due to the ozone layer depletion if it results in vast lesion. Okay, global warming. When we cut down too much of the trees, it will definitely increase the heat of the environment, and the increase of the heat in the environment, it will definitely melt the ice caps. Means we can say the frigid zone, the icebergs, they will melt. So when they will melt, our area of land, our continents, they are definitely covered by the water. The seas become vast, and the landfall will be reducing like this. This is the harmful effect of global warming. And these are the two. There are many more harms regarding this global warming. Even we think, if there is no land, where will we live? Everywhere water is filled on the continental area. Then where we live? So this is the problem of global warming. Do you understand? If suppose global warming happens and our Himalayan ice caps and the ice caps of Siberia, all of them are melt. One minute, excuse me. All of them melt. What will happen? If all of them melt, what will happen? I will say the landfall will be reduced. Now another paragraph. So these are the harms that will that happens while the indiscriminate exploitation of resources. And equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. Listen, if all the resources are ready, I will say necessary for everyone. Like how? If there is a plain land, there will be some, the natives will get food grains in ample amount, and if there is a plateau region, they will get metals in the ample amount. If it is the hilly region, they will get the produce of hills like tea, like apples, like many more things, as the, I will say, cardamom hills and coffee, various crops that are grown on the hills. Okay, so we had studied barter system. So
that barter system helps, I will say indirectly, it helps the equitable distribution of resources. If we see, if I am the native of plainland, I gave the wheat, grain, rice, maize to the native region fellow, and I took metals that are required for me. This is the barter system. Indirectly, in this means resources are equally distributed. If one say that I have rent and I will not give anyone, means they will suffer with the, I will say, bread and butter, they will suffer with it. So, here rises a problem. Indiscriminate exploitation is the wrong thing. It is a thing of criminal offense regarding humanity. It's the crime against humanity. If I say in a familiar words, it's a crime against humanity if one indiscriminately exploiting resources. Why? Because it will lead one's life to finish. Yeah, I think I'm right. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and communities. It is sustained. So everyone should easily live their life, and it is necessary for global peace. In history, we had seen many of the things. Many of the countries tried to occupy others' resources, like the First World War and Second World War, and the behalf of America and the rest of the world, England and European colonies. They behaved in this way, and it created problem to the other native countries of the world. So, for the sustained quality of life, equal distribution of resources is very necessary. Children, I had defined you in a vast way with vast examples. I think you all understood. More than that, with the words, not with the pictures, I think nothing can be explained more than this. I think all of it can. If the present trend of resource depletion, by a few individuals and countries continues, the future of our planet remains. So listen, understand. Very, I will say, the eternal truth is written here. If we are extracting something with a heavy greed, listen, understand. I am giving you like you like sweets, and sweets are for the taste change of the setup of our thinking and everything, giving peace to us. I will say, and if you inhale it more, definitely you will become sick and sin. I have a thirst of the water and I had drunk 10 glasses of water. What will happen? Either I will vomit or I have ache in the stomach. Definitely it will create problem. Do you understand? And they might be life-taking. You understand? Same is the thing here. The people are cutting in the without any restriction trees, and if they are cutting trees, it will degrade the land, it will create pollution more, the greenhouse effect will affect it. Do you understand what I am saying? And this behavior is mostly adopted by the developed countries, like the north or the northern hemisphere countries, because they are developed with the technology and much more things. So they do this behavior. And whenever the problem rises, they started humiliating the Latin countries of the world, southern countries of the world. So this is the wrong way. So if each will responsibly behave, the life of our planet is long, and it's good for our upcoming generations. It's a responsibility we have as a human, as a country, as a leader of the earth, I will say, responsible fellow of the world. So one should not be having this. Every country should be responsible for the need and need. Always be sustainable. Always lead a sustainable way of life that is good for themselves, for the coming generations, and for the planet also. This is the thing they have described in this slide. Now let's proceed towards another. Therefore, resource planning is essential, I will say.
resource planning is essential. Resource planning is now that we have adopted by the developed countries. At this time, I will say, to control all these things, the world decided to meet United Nations organization for the whole of the world for considering the problems of world. UNO is there, and it takes care of it. So decision was made that each of the country plan their resources goodwill and extract them, exploit them. And if someone found guilty with the greed, those United Nations United Nations organization will indulge in that matter and put charges over them and try to make them do the right path. So everything should be in a balanced way. It is decided the resource planning is necessary. Means I said you, I will say you heard, but you had not. You have properly after my saying and your understanding, still you had not adopted it because you had the greed. At that time, some laws are made to and pressurized over everyone and try as per their limits to be sustainable, and resource planning is essential for sustainable existence all forms of life. हर तरह के जीवन, all types of life, whether it is wild life, whether it is aquatic life, whether the human being or the wild animals, everywhere. So resource planning is essential. How much one should extract? If someone crosses the limit, there should be definite charges, even they can be imprisoned. Like this. The rules are made, each country had adopted it and legally properly, but some of them from behind they are misleading the thing and doing wrong things. So sustainable existence. Now listen, if all the deers are, I will say, all the deer are removed from the forest, what the lion will eat. So there is a plan, necessary plan, because they are the, I will say, flesh eating animals, and the deer eats grass. So each should lead sustainable. No one should be with the greed. Sustainable means आपने हिंदी में अपने वहाँ सुना होगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए मैं भी दीवाना हूँ साधना हूँ. This is the sustainable existence, not with the greed. This should not be adopted. Sustainable existence is a component of sustainable development. अच्छा, one thing, if someone says that I am developed, how much you want to be developed? This development also has its limits. You know? Development should also not be greedy. It should be sustainable. Development also be sustainable. साईं इतना दीजिए जामे कुटुम मैं भी दीवाना हूँ साधना हूँ. बस इससे ज़्यादा नॉट मोर देन दैट. इतना ही डेवलपमेंट चाहिए. धरती भी बनी रहेगी, मानव भी बना रहेगा, पर्यावरण भी बना रहेगा, मिट्टी भी बनी रहेगी, लैंड डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी नहीं होगा, है ना. तो अगर इस तरह से बिहेव किया जाए, कहते हैं ना, तो जो है ये चमन चमन हो जाए, है ना, ऐसा है. बट चिल्ड्रन, है ना, जैसे हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं उनमें राहु केतु है ना, उसको भी बिहेव करना, शनि को भी बिहेव करना. तो जो राहु केतु और शनि टाइप के जो लोग हैं अपना बिहेव चाह करके भी छोड़ नहीं, उनके लिए बनाया है यूएनओ.
और हर देश ने अपने बनाए कानून, और जो कहा जाता है शनि की 7.5 की भैया, उनके लिए उनको तरह तरह से सही समझ रहे ना। जैसे शनि ने किसी काल में तुम्हारे ऊपर मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर 7.5 बन के आ रहा हूँ, तुम्हारे को परेशान करूँगा। जैसे आपको पता होगा एक बार बजरंग बली ने कोई उठा के 50 पर्वत रख लिए, शनि चिल्ला करके भाग खड़ा। इस तरीके से मतलब इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ solution. Am I right? But it is better one should intellectually adopt good things in their behavior. It is the best way. Sustainable behavior. Behavior कैसा sustainable. Am I right? Now some of the activities are given here. We do it in the copy. We will proceed from the other things. Some questions. Okay. What do you think about resources they use? What is your opinion about the waste and its utilization? Like this. So children, they get sustainable development, sustainable economy. I had defined everything regarding sustainable. गजब मैंने समझा दिया। It is written here regarding sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. अगर इसको एक वाक्य में अगर कहना हो तो ऐसे कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा है कि आप जो है पर्यावरण को कोई बिना नुकसान पहुँचाए हुए करिए। किसी भी रूप में 0.1% भी पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। And development in the present should not compromise with the needs of the future generation. That's the development in the present should not compromise with the needs of the future generation. और पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, प्लस आप फ्यूचर जनरेशन का भी क्या क्लास वन की क्लास ले लीजिए और जय श्री अंडरस्टैंड हो रहे हैं। तो दिस इज अंडरस्टैंडेबल। There is some example. Rio de Janeiro Earth Summit 1992. Beta, children, I will say Rio de Janeiro Earth Summit 1992. इसमें क्या हुआ देखो बच्चों को बताइए। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in South American country Brazil. इसमें जगह है Rio de Janeiro। वहाँ के 100 देशों के जो प्रमुख थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उपस्थित मिले जून 1992। और उन्होंने फिर क्या किया? फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। चिल्ड्रन, पहली अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, इसमें 100 देश शामिल हैं, 100 कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन इट। अब यू नो अर्थ समिट है तो डेफिनेटली अर्थ के सस्टेनेबिलिटी के विषय में बात होगी, कैसे बिहेव कर 100 देश मिल के बैठ कर डिस्कस करेंगे, सब अपने अपने विचार देंगे, अपने रिकॉर्ड्स को पुट आउट करेंगे और सबको रिस्पॉन्स में बिहेव करना पड़ेगा, किसके यहाँ क्या प्रॉब्लम है सब डिस्कस करेंगे और वो सब आई विल से प्रॉपरली बिहेव करेंगे। तो समिट वॉज कन्वेंड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर दे हैड डिसाइडेड अर्जेंट प्रॉब्लम्स। अब 100 देश हैं तो 100 देशों के पर्यावरण की कुछ एकदम अर्जेंट वाली प्रॉब्लम है, जिसमें पर्यावरण की भयंकर सुरक्षा की आवश्यकता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छा और एक समस्या है सामाजिक आर्थिक विकास की भी बात होगी और पर्यावरण की भी बात होगी, दोनों बातें एक साथ होगी। विकास की भी बात होगी, सामाजिक विकास कैसे अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आर्थिक विकास की कोई समस्या है, रोटी की समस्या है तो उसकी भी बात होगी, समाज शिक्षा नहीं पा रहा है, स्वास्थ्य नहीं, उसकी भी बात होगी, और प्लस ये भी बात होगी कि पर्यावरण को नुकसान भी नहीं। इस चीज़ के लिए
पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में नई दिल्ली और इन ब्राज़ील, इट इज़ द कंट्री ऑफ लैटिन अमेरिका। तो the assembled leaders signed the Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity। 100 देशों ने मिलकर के एक सहमति पत्र पर साइन किया, डेक्लरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। सबने हस्ताक्षर किया कि भूमंडलीकरण से मतलब पूरे भौगोलिक रूप से ग्लोबल होल ऑफ द ग्लोब पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। तो हमने जो ऊपर पढ़ा है ना ग्लोबल वार्मिंग, और जो बातें मैंने बोली थी बिल्कुल वैसी ही है एज इट इज़, समझ रहे हैं। अगर आप पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो पर्यावरण बदलेगा, है ना। डिवाइस कैप्स मेल्ट कर जाएंगे तो पर्यावरण बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। पॉल्यूशन ज़्यादा करेंगे तो बदलेगा। इकोलॉजी और आपका से व्हाट इज दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभावित होगा तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगी, है ना। उसके लिए वन हैड डिसाइड ऑन ग्लोबल एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जैविक विविधता पर भी एक घोषणा पर साइन किया गया। जैविक विविधता इस पर भी साइन किया गया। अब पृथ्वी सम्मेलन है तो जैविक विविधता का मतलब क्या है कि भैया विकास ऐसा करो कि शेर भी बना रहे, चीता भी बना रहे, हिरन भी बनी रहे, हाथी भी बना रहे, गधा भी बना रहे, सांप कीड़े भी बने, कीड़े मकोड़े भी बने रहे। पृथ्वी सम्मेलन में हुआ कि जैविक विविधता का ख्याल रखा जाए, उस पर भी एक सिग्नेचर हुआ कि सबको कैसे मेंटेन करके रखा है। तो दिस वॉज द पृथ्वी सम्मेलन। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। अब देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर क्या हुआ, उन्होंने हमारे वनों को लेकर रिगार्डिंग फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जंगल के सिद्धांत क्या है। अब पता चला जंगल काट के अपना घर ही मकान बनाए जा रहे हैं। मानव आप माने आप, हम और आप नहीं, पूरी मानवता की बात होती है कि हमें घर चाहिए तो हमें जंगल को काट करके वहाँ घर बना दें। जब आप उनके घर में घुस जाओगे तो वो आके आपके घर में घुस जाएंगे। पहले वो जानवरों को मार के खाते रहे, फिर वो आपको मार के खाएंगे, है ना। इस चीज़ पे साइन किया कि नहीं भाई साहब, उनके एरिया में आप ना जाइए, वो भी जिए, आप भी जिए, कहा है ना जियो और जीना। तो यही है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस पे कुछ जंगलों के सिद्धांत पर बात हुई एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21, और उन्होंने एजेंडा 21 को मतलब अपनाया और अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट द 21st सेंचुरी। एक एजेंडा 21 को अपनाया, इट्स ठीक एजेंडा 20 मतलब पूरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ और एक एजेंडा 21 को सभी लोगों ने मिलकर साइन किया कि भैया 21वीं सदी में हम जो है कैसे बिहेव करेंगे। साई दीजिए या मैं भी बना रहा हूँ साथ निर्वाह विकास करेंगे। जैसे कहते हैं निर्वाह विकास, हवस नहीं पालेंगे, हवस यानी ग्रीड, लालच नहीं करेंगे, निर्वाह स्तर का विकास करेंगे, है ना। जरूरत 2 रोटी खाने को चाहिए, इतना डेवलपमेंट करेंगे। हम 10 रोटी, ऐसा नहीं कि सुबह शाम दोपहर महीने भर की हमने बना के रख ली, खराब हो जाएगी, बेकार चली जाएगी। थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे और निर्वाह स्तर का विकास करेंगे और हमारी पृथ्वी सम्मेलन साकार हो जाएगा। इसी को कहते हैं एजेंडा 21, जिसमें बायोलॉजिकल विविधता को बचाने की बात की और विकास कैसा करेंगे, हवस वाला नहीं करेंगे, निर्वाह स्तर का विकास करेंगे। अब इसमें देखो ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब जो एक्सप्लेन कर गया हूँ वही इसमें बताया गया। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे विश्व की समस्या है, कोई नहीं मान रहा, इस कॉन्फ्रेंस में इससे निकल क्या करेंगे, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो ग्लोबल लेवल पे वर्क करता है। उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, पर्यावरण के ऊपर और विकास के ऊपर, है ना, अनसेड उसको लिखा गया UNCED कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। दिस ग्रुप प्रेजेंटेड ब्राजील। इट एम्स एट द अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसका उद्देश्य क्या था, पूरी पृथ्वी के लेवल पर पूरे से भौगोलिक रूप से निर्वाह विकास किया जाए, इसको करना है। और कोई नहीं मान रहा है तो 100 में 100 मिल करके सूचना करेंगे कायदे से हो जाओ, हमारे संसाधनों को बढ़ा करेंगे, बिहेव सही करो तो नहीं तो फिर ठीक है भाई, समझदार को इशारा काफ़ी, मान जाओ, कहते हैं ना समझदार आदमी को बोल दिया जाता है वो समझ जाता है।
जो नहीं समझता है फिर सब लोग डंडा लेके खड़ा होता है, समझ जाओ। तो उस चीज़ में यहाँ पर साइन, इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। अच्छा, इस एजेंडे में क्या है, इस एजेंडे में क्या है, अब जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, ये कानून जो एजेंडा 21 बनाया गया, ये इसी तरह के मिसबिहेव को सुधारने के लिए बनाया गया है ना। कोई व्यक्ति जैसे नहीं मान रहा है, हमने करोड़ बार समझाया, उसको समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतात्मनोत्थानं तदात्मानम् अवश्य, तो फिर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, धर्म सिखाना पड़ेगा, है ना। महाभारत से समझो, सब समझाते हैं। तो इसका मुकाबला करने के लिए 100 देशों ने मिलकर कानून बनाया, है ना। भाई पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है ना, बीमारियाँ फैल रही, पूरे भौगोलिक रूप से फैल रही, हमारा सब कुछ ग्लोबल कोऑपरेशन और कॉमन इंटरेस्ट, हम सभी एक दूसरे का सहयोग करें, भौगोलिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करें, गरीबी, बीमारी, पर्यावरण का नुकसान, इन सब में मिलकर मदद करें, क्योंकि इसमें सबका भला है, पृथ्वी का भला है, पृथ्वी सम्मेलन इसका नाम है। तो हम इसमें कोऑपरेशन करें और आपस में एक दूसरे की ज़रूरतों को, जिम्मेदारियों को, कोई नहीं कर पा रहा है तो हम उसकी हेल्प करें एक दूसरे। उसकी माने ये नहीं कि एक ही आदमी, उसकी कोई कमी हो वो मदद करेगा और दूसरे की कमी हो तो आप करेंगे, लाइक दिस। तो दिस इज द एजेंडा। One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। तो देखिए, मैंने लोगों से साइन कर लिया, अब भैया मैंने कह दिया कि भैया ये लाइन की चीज़ के आगे नहीं जाना, कोई नहीं मानता। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में LOC बना दी, LAC बना दी, है ना, तो वो आतंकवादी ग्रुप हमारे यहाँ घटना करते रहते हैं, नहीं मानता। हमने कानून बना दिया, नहीं मानता। हमने कह दिया प्रधानमंत्री है तो वो नहीं मानता, है ना, समझ रहे ना बात। तो फिर उसके लिए कहा कि भैया ऐसा है, यूनाइटेड नेशंस लेवल पे कह दिया भैया एजेंडा 21, यहाँ तो हम लोगों ने साइन कर दिया 100 देशों को मिलकर, लोग इस पर नज़र भी रखेंगे, लेकिन आप लोग 100 देश जो है अपने अपने देश में कीजिए और ये एजेंडा 21 अपने देश में जाके आप लागू करिए। दिस वॉज ऑल्सो अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा। ठीक है भाई, अब आइए बात, अब एजेंडा 21 हम लोग आगे से बताना शुरू। अब यहाँ पर है रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पर क्या है, रिसोर्स प्लानिंग। अब यहाँ पर है रिसोर्स प्लानिंग। अब देखो, प्लानिंग हमने बताया था ना क्यों होनी चाहिए प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग क्यों नेसेसरी कि भाई संसाधनों को बैलेंस बनाना है ना, इसलिए प्लानिंग नेसेसरी। मेरे पास कपड़े अगले पास अनाज, कपड़े में उसको दे दूँ, अनाज उसको दे दूँ, लाइक दिस। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब प्लानिंग क्या है, नियोजन क्या है। प्लानिंग मतलब नियोजन, योजना बनाना। योजना बनाना जैसे पढ़ने के लिए बच्चे योजना बनाते हैं कि मैं दिन में 10 घंटे पढ़ूँगा, 12 घंटे पढ़ूँगा, कैसे मैनेज करूँगा, कितने घंटे सोऊंगा, कब खाऊँगा, कितना क्रिएट करूँगा, ऐसे करके वैसे ही प्लानिंग, संसाधन कितना प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, कितना स्टोर करेंगे, कितना फ्यूचर जनरेशन है, ऐसी सारी प्लानिंग आप करेंगे। तो एजेंडा 21 के आधार पर रिसोर्स प्लानिंग और डेवलपमेंट में सबसे पहला काम है प्लानिंग। प्लानिंग से किया हुआ काम कभी गलत नहीं होता। अनप्लान्ड वर्क कभी भी वो सफलता नहीं पाता है जो प्लान्ड हुए काम सफल अच्छा होता है, देखने में ही वो अच्छा लगता है। अनप्लान्ड जो होता है वो सही है, भले ही वो सही हो जाए लेकिन उसमें कमी रहती है, उसका जो है कहते हैं क्लैरिटी नहीं दिखाई पड़ती। आइए पढ़ते हैं। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग क्या है, नियोजन क्या है, इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये विस्तार से प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड। प्लानिंग जो है वो विस्तार से स्वीकार की गई चीज़ है, स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप योजना बनाते हैं तो न्यायिक ढंग से देखिए, मैंने कह दिया भैया क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। एक ने उठाई लाठी 10,000 काट दी। क्या ये भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः वो नहीं हुआ ना,
तो न्यायपूर्ण ढंग से नियोजन ऐसा बनाइए जो न्याय संगत हो, जिसमें संसाधनों का न्याय संगत प्रयोग हो, राष्ट्र की भावना होगी और कोई संसाधन पर कब्जा करने की भावना नहीं दिखाएगा। सबसे पहले देश, फिर विश्व और फिर वहाँ का जनमानस लोकल। इस तरह से आपको बिहेव करना ही पड़ेगा। आप नहीं मानेंगे तो ये 100 देश मिलकर आपको सॉल्व करें। तो रिसोर्स प्लानिंग में एजेंडा डेवलपमेंट में सबसे पहली हेडिंग होती है कि संसाधनों को तर्क संगत ढंग से प्रयोग किया। इट हैज़ इम्पॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और भारत जैसे देश में ये तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ की आबादी चाइना के नंबर 1 देश है भारत। तो इतनी बड़ी आबादी को संभालना है ना, एक तरफ पूरा विश्व और एक तरफ भारत आबादी के हिसाब से, है ना, चाइना। तो वहाँ पर संसाधनों का जो है प्लानिंग बहुत आवश्यक है। विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अच्छा, प्लानिंग का इफेक्ट क्या होता है? हमारे यहाँ बच्चों ड्रॉट भी पड़ चुकी है, सूखा पड़ चुका है, फेमाइल्स आपदाएँ आ चुकी है, अकाल पड़ चुकी है। क्यों? शुरुआत का समय था, आज़ादी के बाद का कोई प्लानिंग थी नहीं, हम लोग सफल किए। अगर प्लानिंग से चले हो तो सही से रहे हो तो करें, क्योंकि नया नया हमारा देश हम लोग के हाथों में हैंडल करना जाने उससे बड़ा भारी नुकसान होगा। इट हैज़ इम्पॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी एंड रिसोर्सेज। अच्छा, वो जनसंख्या वाली बात जो मैंने बोली वो तो है ही है। अच्छा, संसाधनों का भी कहीं संसाधन हैं, कहीं पर बिल्कुल, तो वहाँ पर प्लानिंग बहुत आवश्यक है कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सारे संसाधन। राष्ट्र लेवल कोई कब्जा नहीं दिखाएगा कि नहीं ये मेरे क्षेत्र में है तो ये मेरे हैं, नहीं चलेगा ना। सारे संसाधन राष्ट्र के हैं, आपका कुछ नहीं समझाना कानून में, ना एक भी संसाधन आपका है, ना आपकी कोई प्रॉपर्टी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ मेरी है। अगर राष्ट्र हित की बात आ रही, आपका कुछ नहीं रहती। इट्स यूनिक एजेंडा 21। गुड, अच्छा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और क्योंकि भाई तर्क संगत जुडिशियस प्लान है ना, तो इट्स गुड। तो मैं तो समझूंगा ये एजेंडा 21 का ही हिस्सा है। संसाधन हमारे यहाँ बहुत विलक्षण, सब जगह एक से बराबर संसाधन नहीं बैठे हैं। कहीं पहाड़ है तो पहाड़ी ही, कहीं समुद्र है तो समुद्र ही, मैदान है तो मैदान ही है, पहाड़ है तो पहाड़ ही, रेगिस्तान है तो रेगिस्तान ही है ना, समझ रहे ना। इसलिए यहाँ पर तो प्लानिंग बहुत आवश्यक है। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्स। यहाँ पर कुछ जो क्षेत्र हैं वो बहुत अमीर है इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कुछ निश्चित प्रकार के संसाधन, बट आर डिविजन इन सम अदर रिसोर्सेज। कहीं पर संसाधन बहुत ज़्यादा और कहीं पर कोई संसाधन बिल्कुल नहीं। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसीडर, मैं ये बात आपको बता देता हूँ, विच कैन बी कंसीडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। जैसे वाइटल माने जीवन, जिनके बिना जीवन ही नहीं चल सकता। तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र और कुछ ऐसे हैं उनके पास इतना ज़्यादा है कि खपत नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर खनिज और कोयला खूब पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पानी के संसाधन बहुत है, लेकिन वहाँ पानी अंधाधुंध भरा पड़ा है और पता चला वहाँ विकास कुछ है ही नहीं, जंगल ही जंगल। ये अरुणाचल की कहानी। ऐसे ही राजस्थान की क्या कहानी है? राजस्थान में हवा और सौर ऊर्जा के बढ़िया स्रोत है, लेकिन वहाँ क्या है, जल ही नहीं है ना। सोलर का अगर प्रयोग करना है बहुत बढ़िया है, हवा का प्रयोग करना है बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ क्या नहीं है, वहाँ पानी संसाधन, जल संसाधन जल की कमी। द कोल्ड पीरियड ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देखो जो हमारा बर्फ़ का रेगिस्तान है लद्दाख, वहाँ पर क्या वो बिल्कुल अलहदा पड़ जाता है पूरे देश से। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। आपका लद्दाख में बड़ा बढ़िया सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन वहाँ क्या है, पानी नहीं है, पानी। अब आप यहाँ पे एक बात और समझ, चमत्कार है उनकी भाषा में अगर हम कहें कि वहाँ पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और मिनरल्स की कमी है। और समझिए जहाँ बर्फ़ की चोटियाँ साल भर वहाँ बर्फ़ जमा रहती है, मतलब पानी नहीं हो, वहाँ पीने योग्य पानी नहीं, लेकिन बर्फ़ की चोटियाँ ढकी रहती है। तो वहाँ पानी की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, खनिजों की कमी। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग, नेशनल, स्टेट, रीजनल वगैरह। तो इस वजह से ज़रूरत है कि रिसोर्स में प्लानिंग है ना।
अब आप यहाँ पर एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से राज्य में कौन से संसाधन पाए जाते हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट बट डेफिसिट इन योर स्टेट। ठीक है, जो दूसरे राज्य में है अपने राज्य में नहीं है, ऐसी एक लिस्ट होगी। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में रिसोर्स प्लानिंग उसका क्या रोल है भाई? भारत में रिसोर्स प्लानिंग का क्या स्तर है, आइए देखते हैं भाई। भारत का रिसोर्स प्लानिंग का स्तर देखते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, अब संसाधनों का नियोजन करना ये बड़ा जटिल प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। इसमें क्या होता है? संसाधनों को पहचानना पड़ता है, उनकी खोज करनी पड़ती है पूरे देश में। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग एंड मैपिंग, इसमें क्या प्रयोग होता है? इसमें सर्वे करना पड़ता है, मैपिंग करनी पड़ती है, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज क्या करना पड़ता है? सर्वे, इसमें सर्वे करना पड़ता है, नाम ये कहाँ संसाधन है, और मानचित्र में उसको बढ़िया सा बनाना पड़ता है, और संसाधनों की क्वालिटी को पहचानना पड़ता है। क्वालिटी हमने पहचानी कितना अच्छा संसाधन है, कितना खराब संसाधन है। फिर क्वांटिटी पहचाननी पड़ती है, कहाँ 1% है, कहाँ 100%, अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर नाम जो करके संचालन पर किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा काम क्या होता है? फिर उसके बाद जब हमने इतना कर लिया, सर्वे कर लिया, मैपिंग कर ली, क्वालिटी देख ली, क्वांटिटी देख ली, उसके बाद बढ़िया से प्लानिंग बनाएंगे कि कौन सा संसाधन कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। इवॉल्विंग प्लानिंग इस फिर हम प्लानिंग बनाते हैं, जिसमें बढ़िया सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं उपयोग, और हुनरमंद स्किल्स का प्रयोग करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके लिए सारी व्यवस्था बनाते हैं, और उस प्लानिंग को एक्टिवेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, और उपयोग करते हैं, और इन्फ्रास्ट्रक्चर करते हैं उसको सही से प्लान लीड करते हैं और इसको। अच्छा, तीसरा इसमें क्या था? इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान्स। जब हमने सब कर लिया तो संसाधन विकास योजना बना कर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। फिर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अच्छा, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को जो है क्या करते हैं? उसको मैच करते हैं, जिससे पूरे राष्ट्र का सही से विकास हो सके, मतलब संसाधनों का सही बांटने हो सके। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फर्स्ट पार्ट। अच्छा, भारत ने इस काम को कैसे किया? भारत जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों के हाथ से 1947 में 1947, तब से वो भारत जो है हमारे हिंदी में वर्ड है पंचवर्षीय, 5 ईयर प्लान। उसके हिसाब से क्या करते हैं? शुरू से हम लोग प्लानिंग से चल रहे हैं। हमने क्या बना रखा है? योजना आयोग बना रखा है, उसका अध्यक्ष होता है डायरेक्ट प्रधानमंत्री होता है, वो उसकी निगाह में ये सारी बातें जाएंगी और वो उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो वो 5 ईयर प्लानिंग जो है वो इसी उद्देश्य से की गई है। तो उस प्लानिंग का उद्देश्य भी है 5 ईयर प्लानिंग। तो हमने तो ऐसे करके राष्ट्रीय स्तर पर और वर्ल्ड लेवल पर उसको अपना रखा है। फ्रॉम 1947 what resources are being developed in your surrounding by authority that model of अब देखिए, आपका एक एक्सरसाइज बताएंगे, देखिए कि आपके क्षेत्र में कौन से संसाधन हैं और वो कैसे क्या लोग मैनेज करते हैं, क्या क्या नहीं है, इसका एक कार्ड बनाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। अच्छा, जैसे हमें किसी क्षेत्र का विकास करना है तो जो चीज़ वहाँ होगी हम उसी को तो डेवलप करेंगे। ऐसे डेवलप करेंगे कि जैसे हम यूरोप में बैठे हुए हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम जाके दूसरे देश पर कब्जा कर लेंगे और वहाँ से कच्चा माल उठा लाएंगे, अपने यहाँ उत्पादन करके उनके बाजार में बेच देंगे ना। गलत, इट्स रॉन्ग। अपना
संसाधन यूज़ करेंगे अपना सब, एक दूसरे को दबा करके ये कहेंगे पर्यावरण को देखते हुए ये सही नहीं है, गलत है। तो अपने ही क्षेत्र में संसाधनों का बढ़िया से बड़े कैलकुलेट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, ऐसा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी, बट नियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग अच्छा। एक बात देखिए, क्या है कि संसाधन मान लीजिए हमारे पास है और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम संसाधन का सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, संसाधन भी है, लेकिन हमारे पास उसका संगठित प्रयास, विकास का प्रयास करने की क्षमता नहीं, तो या विकास में रुकावट आएगी। देयर आर मैनी रीजन्स इन अवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इनकम्प्लीट। अच्छा, इन्हीं कारणों से हमारे देश में कुछ जगह ऐसी है जहाँ बहुत सारे संसाधन लेकिन बेचारे बड़े ही पिछड़े क्षेत्र में, है ना, विकसित नहीं हो पाए। तो देयर आर मैनी रीजन्स दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े। इसी की विरोधाभास में एक चीज़ का ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन विच आर पुअर रिसोर्स, कुछ क्षेत्रों में संसाधन सीमित है, बहुत कम रिसोर्स बेस, बट दे आर, लेकिन वो क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से विकसित है। कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच एंड बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स, गिव रीजन्स फॉर ईच। तो इसका एग्जाम्पल लीजिए और इससे the history of colonization reveals that rich resources are used for the main attraction for our colonization। देखिए, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और कॉलोनी विश्ववाद को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दैट रिच रिसोर्सेज फॉर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन विजिटर्स। ये जो विदेश से, यूरोप से लोग आए थे, अफ्रीका आए थे भारत में व्यापार के लालच में, तो उनका आकर्षण यही था, क्या देश में गए उन्होंने वहाँ के संसाधनों को देखा और उस पर एंटीना लगी, और ये इसी आधार पे इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that helped them to exploit resources of the regions and establish their supremacy over the colonies। ऐसा देखा इन्होंने अपनी कॉलोनी जबरदस्ती बना दी, कैसे बना दी? टेक्नोलॉजी भी थी, जी कैपिटल भी था और स्किल्ड लेबर भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। सोचा कच्चा माल हम कॉलोनी बना के उठा लेंगे और हम अकेले जो है डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा था। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ जैसे जहाँ जहाँ इन्होंने उपनिवेश बनाए वहाँ पर पूरे देश में कब्जा कर लिया, है ना। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology। ऐसे जैसे मान लीजिए आप कहीं डेवलपमेंट करना भी चाहते हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं, बट अगर रिसोर्स वो ढूंढ है, दे आर डस्ट, दे आर अपने आपके पास स्किल नहीं, कैसे यूज़ करो, सीखिए आप तो नहीं जाते, कर ही नहीं पाओ, कुछ नहीं कर सकते। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by ability होनी चाहिए, हमारा सक्षम होने की क्षमता भी होनी चाहिए, तब जाके हम ऐसा कर सकते हैं। इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेज ऑफ। अच्छा, भारत के साथ क्या ये अनुभव किया है बहुत सारे डिफरेंट फेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। भारत ने इस चीज़ का अनुभव किया है, डिफरेंट फेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर। अगर देखा जाए विकास जो है सामान्यतः संसाधन विकास पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो क्वालिटी ऑफ रिसोर्स एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द। हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, संसाधन होने का मतलब ये नहीं है कि आप विकसित हो गए, ना, हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, इसके लिए कैपिटल होना चाहिए, तब हम उस संसाधन को डेवलप करने का कोशिश करवाएंगे। ठीक है।
मेरे भाई बच्चों, अब इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगली हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी प्लानिंग का बहुत आवश्यक हिस्सा है। कंजर्वेशन अब आपको एक गिलास वाला पानी बता रहे हैं, ये प्यासा उतना यूज़ करें, और कोई नहीं मान रहा है तो फिर उसके लिए कंजर्वेशन के कानून बनाने पड़ेंगे। प्लानिंग में हमने एजेंडा 21 को लागू किया, लेकिन एजेंडा 21 का ही ये हिस्सा है कि कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा। ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है। एजेंडा 21 को ही ये लीड करता है, प्रेजेंट करता है। अगले पढ़ेंगे क्या, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण, इस पर हम लोग ध्यान देंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन का